أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کانا ایک ہفتہ پورا پڑھے اور کانا کو سمجھ لیے. اب بھی اگر آپ کے ذہن میں کانا کے متعلق کوئی بھی شک و شبہ ہے تو کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. ایسا نہیں کہ وہ ہو گیا، تو آپ کو جب بھی ذہن میں آئے گا جب پوچھیے تو آپ کے بارے اس کے متعلق آپ کو بتایا کرو گے انشاءاللہ. آج ہم ایک کانا کی بہن کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں جو کانا کی اخوات میں سے ایک ہے اور 2 نمبر کی بہن. کانا بڑی بہن ہے، اس کے بعد کی بہن یہ لائسا. لائسا دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس میں 3 حرف ہے. فا کلمہ لام ہے اور لام کلمہ سین ہے اور درمیان میں یا نظر آئے. تو یہ بھی اجوف فیملی سے آتا ہے جس کے اندر عین کلمہ پہ یا جو ہے حرف علت ہے، اس لیے اسے کہیں گے اجوف فیملی کہا ہے. لائسا کا استعمال ہوتا ہے کسی جملے اسمیہ پر. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جملے اسمیہ پر لائسا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ لائسا نہیں ہے کا ترجمہ کرتی ہے. نہیں ہے یعنی نگیٹو بنانے کے لیے یہ ایک خاص ڈیزائنر نگیٹو ہے، مخصوص نگیٹو ہے. اور آپ لوگوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہ زمانے اس کے ساتھ زمانے نہیں ہوتے، انہیں ماضی میں نہیں جاتا، مستقبل میں نہیں جاتا، صرف نہیں ہے کا معنی دیتا. صرف اور صرف نہیں ہے کہ معنی دیتا. تو اس کو جو بھی چیز ماضی اور مضارع میں نہیں جاتی، مستقبل میں نہیں جاتی، اسے جامد کہتے ہیں. جامد یعنی فکسڈ. یہ تبدیل شدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہ فعل ناقص تو ہے ہی لیکن جامد ہے. نام یاد نہیں رکھے تو بھی چلے گا، جامد اگر رکھے نام تو بڑھیا ہے. لیکن اس کا استعمال پریزنٹ میں ہوتا ہے اور اس کی گردان کانا کے جیسا ہی ماضی میں ہوتی ہے. جیسا نصرہ یا فعلا کی گردان ہے اسی طرح اس کی گردان بھی ہوتی ہے اور یہ پورے 14 سیوں کے ساتھ چلتا ہے. جیسے ایک غائب مذکر نہیں ہے، 2 غائب مذکر نہیں ہے، تمام غائب مذکر نہیں ہے، 1 غائب مؤنث نہیں ہے، 2 غائب مؤنث نہیں ہے، تمام غائب مؤنث نہیں ہے، تو ایک حاضر مرد نہیں ہے، تم 2 حاضر مرد نہیں ہو، تم تمام حاضر مرد نہیں ہو، 1 حاضر عورت نہیں ہے، 2 حاضر عورتیں نہیں ہے، تمام حاضر عورتیں نہیں ہے، میں نہیں ہوں، ہم نہیں ہے. اس طرح سے بالکل لائسا کے ساتھ اگر آپ لائسا کی طرف دیکھیں گے تو آپ اس کو فعلا سمجھیے. فعلا کا ہم نے 2 لوگوں کے لیے کیا بنایا تھا؟ فعلا. تو لائسا کا کیا بنے گا؟ لائسا. جیسا ہم نے فعلو بنائے تھے غائب مذکر کے لیے، ویسے یہ بنے گا لائسو. ایک عورت کے لیے بنائے تھے ہم نے فعلت، یہ بنے گا لائست. 2 عورتوں کے لیے بنے گا لائستا. تمام عورتوں کے لیے بنے گا لسنا. لسنا کا لس مل گیا، نہ نکال دو. انتا لستا، انتما لستما، انتم لستم،
अंती लस्ती, अंतुमा लस्तुमा, अंतुन्ना लस्तुन्ना, अना लस्तु, नहनु लसना। तो कोई भी याद करना मुश्किल नहीं है। बहरहाल हम थोड़ा सा और भी मजीद उसका तारुफ कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। ये यहाँ पे देखिए, सादा जुमले इसमें लिखा है, जैद है एक तालिब इल्म। सादा जुमले इसमें बने, ये मुब्तदा जैदुन है, तालिबुन ये खबर है नकीरा। तो ये जुमला इसमें आपके पास है जो साबित, इसको इनकार वाला बनाना है तो इसके सामने खाली लैसा दाखिल करो। अब आप जानते हैं कि ये काना की बहनों में से है, तो ये अपने मुब्तदा पर कुछ काम नहीं करेगा, अलबत्ता ये खबर पे काम करे। तो ये जो लिखा है लाल में ऊपर पढ़िए, जैदुन तालिबुन, तो लैसा दाखिल करके बनेगा जैदुन तालिबन। तालिबन क्या बनेगा? जैदुन तालिबन। तो ये जैदुन तालिबन हो गया। जैद नहीं है एक तालिब इल्म। जरा माइक बंद कीजिए भाई, जरा माइक बंद कीजिए मेहरबानी की। हाँ, तो जैदुन तालिबुन का मतलब है जैद है एक तालिब इल्म। काना के बिल्कुल जैसे ही काम कर रहा है ये, जैदुन तालिबुन की बजाय जैदुन तालिबन हो। अगर इसमें जोर लगाना है तो तालिबुन के साथ एक बी, बाजेर बी लगाया जाता है, बाजेर बी, और बी ये हर्जर है, इसलिए तालिबन से तालिबिन हो जाए, या तबीबुन है तो तबीबिन बन जाए। तो पहला जुमला क्या है? जैद है एक डॉक्टर, बोलिए जैदुन तबीबुन। लैसा दाखिल कीजिए, लैसा जैदुन, जैदुन बेतबीबिन। पहले गड़बड़ नहीं करेंगे, पहले गड़बड़ नहीं करेंगे। जैदुन तबीबन, जैदुन तबीबन बनेगा, लेकिन आपको ताकत लगा के बोलना है कि जैद बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, तो बोलेंगे लैसा जैदुन बी तबीबिन। यानी यहाँ पे जोर देने के लिए बजर बी लगाया जाता है, और बी जो है हर पे जर रहने से इसम को मजरूर करता है। तो ये तीन स्टेप हो गए। पहली स्टेप है जैदुन तबीबुन, फिर लैसा जैदुन तबीबन, और लैसा जैदुन बी तबीबिन। ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगे कि कुरान में कौन सा ज्यादा आता है, तो कुरान में लैसा बी तबीबिन ज्यादा आता है। ठीक है, तो नीचे नोट लिखा है, जुमला इस्मिया की खबर में भी ऐड किया जाता है, इसलिए कि खबर मजरूर हो जाती, इसीलिए खबर मजरूर हो जाती है और ताकत पैदा करता है। लैसा जुमले में लगाने से मुब्तदा कहलाएगा, इस्मुल लैसा कहेंगे उससे, और खबर को कहेंगे खबरुल लैसा। बिल्कुल काना के मुआफिक या इन्ना के मुआफिक फिर कहेंगे इस्मुल लैसा, खबरुल लैसा। और खबरुल लैसा, लैसा की वजह से नसब होता है, भी लगाने से नसब से वो जर्री हालत में होता है, मजरूर हो जाता है। ठीक है, अब एक औरत के लिए बनाएंगे भाई, औरत, तो लैसा बन जाएंगी लैसत, लैसत ज़ैनबु, लैसत ज़ैनबु तबीबतन, लैसत ज़ैनबु तबीबतन। अब ताकत पैदा करेंगे हम, लैसत ज़ैनबु बी तबीबतिन। बस इतना ही इसका पूरा खेल है। यही आज का चार्ट अगर आपने समझ लिए तो आपने लैसा को पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं बहुत सारे डिटेल लेना चाहूंगा ताकि आप इसके माहिर बन जाए। ओके, अब देखिए खुद के लिए बोलने का है। मैं के साथ बताना है कि मैं हूं डॉक्टर, क्या बनेगा?
अना तबीबुन, अब अना के बाद में लाइसा लगाएंगे, लस्तु तबीबन, मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं हूं, लस्तु बी तबीबिन। समझ में आ गया सबको? नीचे देखिए, लस्तु निकाले तो क्या लगेगी? आना। अच्छा, जी लैसा, लैसा को पेश करने के दो तरीके हैं। एक तो लैसा को जुमले में पहले रखते हैं, और दूसरा लैसा को ज़मीर के बाद में भी लगाते हैं। वो दोनों रूल में बता दूंगा। तो आपको ये दो तरीके से बनाना आएगा, जैसा हमने ऊपर लिखे, लैसत ज़ैनब, क्या लिखे? लैसत ज़ैनब। इसको बदल के ऐसा भी लिख सकते, ज़ैनब लैसत, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली आएंगी, वो भी खाली प्रोनाउंस की है, उसको आप जानते हैं, तो कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जरा पीछे जाके देखते हैं कि जब हम पढ़े थे पीछे तो काना पढ़े थे, और लैसा कौन है भाई? काना की बोलो कौन है? लखना की बहन है, और वो भी बड़ी बहन है। तो यहाँ जरा गौर फरमाइए, काना नाफिसा के बहनें कौन कौन थी, क्या क्या थी, जरा देखिए। काना जो है कुरान में 1358 मरतबा है, जिसका मायना है था। लैसा 89 टाइम्स आया जी, जिसका मतलब है नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद का जो फिगर आता है सबसे बड़ा, वो है अस्बाहा। क्या है? असबहा अस्बाहा। अस्बाहा। तो पूरे पूरे में पढ़ देता हूँ। सारा कुछ काम हो गया, कुछ हो गया के लिए सारा आता है कुरान में। सारा एक मर्तबा आया है शायद। जल्लल, जल्ला आता है, जल्ला, जो 11 मर्तबा आया कुरान में। जल्ला का मतलब है दिन के वक्त कुछ तो भी हुआ, दिन के वक्त कुछ तो वाक़या हुआ बनाने के लिए, डे टाइम के लिए जल्ला आता है। बाता आता है रात के वक्त कुछ हुआ, यानी समथिंग हैपेंड एट नाइट। और अस्बहा आता है कोई काम वाक़या हुआ सुबह के वक्त। तो कुल मिलाकर अपने को याद रखना है, जल्ला, बाता, अस्बा और लैसा, और सबसे अहम है काना और लैसा। इसके बाद में अस्बा। ठीक है, तो ये हो गई काना की कंप्लीट बहनों का चार्ट। ठीक है भाई, इनका भी आपको डिटेल दिया जाएगा, पढ़े जाएंगे बहनों को भी, और इसमें से 3-4 बहनें पढ़ेंगे, लैसा और काना छोड़ के कितना रह जाते? 2, अस्बहा, बाता और जल्ला। ठीक है, तो कोई चीज आपके लिए छोड़ नहीं जाएगी, सब पढ़ा है। अब जरा फोकस आइए लैसा। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मनफी यानी निगेशन, निगेटिव करने के लिए, और कुछ नहीं। इतना ही है कि दूसरे जो नेगेटिव है, जैसा ला है, माँ है, इन्हों पर्टिकुलर सेगे के लिए नहीं है। पर्टिकुलर सेगे के लिए मतलब क्या है भाई? अगर मुजारे में हमको नेगेटिव करना है तो ला लगा दे, माजी में अगर करना है तो माँ लगाते। जैसा हमने बोले थे, मारा हामिद ने, दरबा हामिद, नहीं मारा हामिद ने, माँ दरबा हामिद। तो दरबा के लिए भी माँ जाता है, दरबू के लिए भी आता है, दरबा के लिए भी आता है, दरबत के लिए भी, सबको माँ ही आता है। वो क्या है? डिजाइनर नहीं है। डिजाइनर का मतलब क्या है? बच्चे को जानते, लड़कियों को मालूम है डिजाइनर क्या रहता है? किसी को मालूम है डिजाइनर किसको कहते हैं? डिजाइन बनाने वाला है वो डिजाइनर, कस्टमाइज, कस्टमाइज नहीं, कस्टमाइज करने वाला। कस्टमाइज करना। डिजाइनर का मतलब बनाने वाला हो गया। लेकिन अगर समझो तो कोई बहुत बड़ा प्रिंस है या बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत पैसे वाला आदमी है, तो उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए जो शादी का ड्रेस बनाता है, ऐसा ड्रेस जाके बना के लाता फैक्ट्री से कि वो उसकी बेटी के लिए ही बनना, अब आगे कोई पहनना नहीं हो। वो साथ साथ तोड़ देते हैं। वो एक ही सांचा चलता है, वही सांचा चलता है। तो क्या बोलते हैं, ये हमने डिजाइनर बना के लिए भाई, अब ये मिलता नहीं।
जैसा मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार में डिजाइनर बना के देता, आदमी की पहले हाइट चेक करते, वजन चेक करते, उसका विजन चेक करते, उस तरह से उसका स्टीयरिंग व्हील लगाते, उस तरह से उसकी कुर्सी बनाते, तो क्या बोलेंगे, डिजाइनर गाड़ी है। तो डिजाइनर क्यों कह रहे हैं हम लैसा के लिए? लैसा वाहिद मुज़क्कर के लिए लैसा है, दो गायब मुज़क्करों में लैसा है, तमाम गायब के लिए लैसू है। यानी कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है, इन्हें ज़मायर के साथ में या प्रोनाउन के मुताबिकत में बदल रहा, उनके लिए मखसूस हो रहा। लैसा बोलेंगे तो तीन जबर दिख रहे और हम बोलेंगे वो नहीं था। फिर हमने बोले लैसा को तलीफ लगा दिए, लैसा, तो आप बोलेंगे दो, नहीं था नहीं है, तो दो गायब मुज़क्कर नहीं है। अब इसको वाव अलिफ लगा देंगे तो बोलेंगे तमाम गायब मुज़क्कर नहीं है। अब इसको लैसत बना देंगे तो एक मुन्नस नहीं है। लैसता कर दी तो बोलेंगे दो गायब मुन्नस से नहीं है। लसना बोले तो तमाम गायब नहीं, यानी कि डिजाइनर है, डिजाइनर है ना, उसके लिए पर्टिकुलर कर दिया गया है, समझे, कस्टमाइज कर दिया गया है। तो ये लैसे के अंदर खासियत है, इन्हें दमायर के मुताबिक अपनी शक्लें तब्दील करता है। और इसको लगाने के दो तरीके हैं, मुब्तदा से पहले भी लगा सकते हैं, मुब्तदा के बाद में भी लगा सकते हैं। मुब्तदा के पहले लगाना बहुत ही आसान है, तो खाली आपको देखना पड़ता मुब्तदा से पहले लगाने के लिए वो जेंडर में बराबर आना, जेंडर यानी जींस में, मर्द का मर्द को, औरत को, बाकी कोई उसके अंदर मुताबिकत नहीं है। फिर रिपीट करो, क्या क्या बोला मैंने? जुमला इस्मिया में मुब्तदा से पहले लैसा, हाँ लैसा खाली जिन्स की बंदिश है उसके, बाकी कोई बंदिश नहीं। खाली लैसा लिख दे तो काम होता रहता है। मर्द, तमाम मर्दों के से सामने वो क्यों नहीं आता, खाली लैसा लिख दो काम करता हो। तमाम औरतों के लिए खाली लैसा तो लिख दो काम करता। लेकिन जैसे ही उसको जमीर के बाद लिखेंगे तो फिर उन्हें 14 सेवाओं में काम करना शुरू करता है। क्या कहा मैंने, कोई बोल सकते हैं? जुमला इस्मिया में, जुमला इस्मिया में लैसा मुब्तदा से पहले भी लगता है, हाँ जिसमें लगता है, तो दो ही शक्लें इस्तेमाल होती है। कौन सी शक्लें इस्तेमाल होती है? लैसा और जिन्स लैसत, लैसा जिन्स के मुताबिकत में आता होता। मर्दों के लिए लैसा था, औरतों के लिए लैसा था, बस खत्म। लेकिन जैसा ही आप जुमला इस्मिया में आपका दमीर के बाद उसको लगाएंगे, फिर आपको उसके मुताबिकत में आना पड़ता है। एक मर्द है तो लैसा, दो मर्दों की बात चल रही तो लैसा, लैसा तमाम है तो लैसू। ये चीजें हम देखेंगे अभी। अब जरा यहाँ पे जुमला देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। जैदुन जालिसुन। हाँ ये जुमला अपना जुमला इस्मिया है, और ये जुमला इस्मिया साबित है, यानी कि अफर्मेटिव है, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। तो यहाँ पे जैदुन जो है मुब्तदा है और खबर जो है जालिसुन है। तो ये दोनों में है कहाँ लगाएंगे? हुआ जैदुन हुआ जालिसुन। हुआ ना छुआ, है कहाँ लगाने का? जैद है, ऐसे जैद है पढ़िए। बैठा। हाँ जैद है जैद बैठा हुआ। तो ये हुआ करके लाइक में तुमने नया कुछ भी कार्यक्रम करते, जैद है बैठा हुआ, क्योंकि नसीरा इसम से पहले उर्दू के तर्जुमे में है लगाइए, इंग्लिश में भी लगाते हैं जैद इज सिटिंग, इस दोनों के दरमियान में व्हाइट और येलो के बीच में है आता है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लैसा लिखा हुआ है, लैसा यानी कि फा कलिमे पे जबर है, आइन कलिमे पे जबर है, तो ये गायब मुज़क्कर के लिए पहला सीगा है। तो जै क्या लिखे, लैसा जैदुन जालिसन, जालिसन। तो लैसा का इस्म कौन है? जैदुन है।
ज़ैदुन इसम है, इस्मो लैसा ज़ैदुन है, खबरो लैसा जालिसुन है। जालिसुन। सबको समझ में आया क्या? पहले का नाम हो जाएगा जैद है बैठा हुआ, दूसरे में होगा जैद नहीं है बैठा। नहीं है बैठा। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए क्या? जी सर। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। आप अगर चाहे तो इसको लिखकर नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे 3 चीजें मैंने अंग्रेजी में लिखा हूँ। एक किसी का माइक टक टक टुक 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 को कर रहा, बंद कर दो माइक सब अपने। हाँ, लैसा का मतलब नहीं। लैसा का मतलब क्या है? नहीं। लैसा, आप जरा नोट कीजिए, पेन पेंसिल उठाइए, मैं इंतजार करता 1 मिनट देता आपको। कागज लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए, वरना 1 हफ्ता खराब हुआ हमारा काना सीखते सीखते। हाँ, तो पहला नुक्ता लिखिए, लैसा मुब्तदा से पहले लगाया जा सकता है। नंबर 2 उसूल, लैसा मुताबिकत में होना मुब्तदा से उसके जिन्स में। पहली चीज में क्या मुताबिकत आना? एग्रीमेंट। जेंडर में सेम होना चाहिए। अगर औरतों का जेंडर आए तो लैसत आएगा। नंबर 3 उसूल है, अगर ये मुब्तदा के बाद आया, अगर ये मुब्तदा के बाद आया तो ये अदद में मुत्तफिक होगा उससे, अदद में। फिर से देखिए, अगर लैसा मुब्तदा के बाद उसकी जगह बनाए तो वो एग्री होगा नंबर से। नंबर यानी वाहिद को वाहिद, तस्निया को तस्निया, जमा को जमा। लेकिन अगर वो जुमले से पहले आता है तो सिर्फ एक चीज में उसको राजी होना पड़ेगा, वो है जिन्स में। यहां तक समझा क्या आपको? नंबर 2 अहम चीज, खबर लैसा की तब्दील होती है और नसब हालत इख्तियार कर लेती है काना के माने में। जैसा काना करा था उसी तरह से। समझ में आ गया क्या? तक लिख लिए क्या आप लोगों ने? जी सर। 4th पॉइंट कोई बोलिए बात? सर। 4 पॉइंट है, देखे अहम 4 पॉइंट के। पहला पॉइंट क्या है? लैसा लैसा आ मुब्तदा से सकता पहले है लगाया। मुब्तदा से पहले, और जब पहले आता है मुब्तदा से तो वो मुताबिकत में होना चाहिए जिन्स के एतबार। मर्द को मर्द का, औरत को औरत का लैसा। तीसरा पॉइंट है, अगर लैसा मुब्तदा के बाद आता है तो उन्हें राजी होना पड़ेगा अदद के एतबार से। वाहिद को वाहिद, तस्निया को तस्निया, जमा को जमा। ये हो गए लैसा को लोकेशन। लोकेशन यानी कहाँ रखना, उसकी प्लेस कहाँ रखना, उसका बारे में 3 कायदे हो गए। चौथा कायदा ये है कि लैसा एक आमिल हर्फ है, और हर्फ नहीं है, लैसा एक आमिल है और आमिल साहब ये फेल है आमिल, और इन्हों अपने खबर को नस्ब करते हैं जैसा काना ने किया था। बात समझ में आ गई बच्चों? अब मैं लैसा के ये जो 3 कानून बताए, 4, उसी को जरा गौर से देखिए। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक सिंपल जुमला है जिसके अंदर लैसा नहीं है। मैंने लिखा हूं अत्तुल्लाबु कसलानु, अत्तुल्लाबु कसलानु। ये कसलानु नहीं है, कसलानु। अत्तुल्लाबु कसलानु। अत्तुल्लाबु ये मारिफा है और रफा हालत। कसलानु नकीरा है, मारिफा हालत में। तो मायने बनते हैं। ये कौन सता रहे यार, कौन सता रहे, क्यों सता रहे? बंद करो ना माइक को।
इसका माइक चालू है, जरा देखिए और उन्हें बंद करो भाई, ये बदमाश के काम आई। हाँ, तो ये मुब्तदा है और ये खबर है। तालिब इल्म है सुस्त। कस्लानु का मतलब क्या है? सुस्त। गज़बानु का मतलब क्या है? गुस्से में, गज़ब। तो सब सिखाया था मैंने। तो मुब्तदा रफा हालत में है और प्रॉपर नाउन है, अलम है। खबर ये जो है नकीरा में है और कॉमन नाउन। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यही जुमले के सामने क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम? लैसा। पढ़िए, लैसत तुल्लाबु, लैसत तुल्लाबु कसलाना, कसलान। क्यों भाई? लैसा आने के बाद लैसा बेगम अटैक करे खबर पर और बन गए खबरो लैसा। आया समझ में सबको? अच्छा जी। जी सर। तो ये लैसा कौन है भाई? इसका नाम लिख लो। फेले नाफिस जामिद। जामिद क्यों है भाई? इन्हें कोई टेंस में तब्दील नहीं, इसका एक ही शक्ल है। जामिद का मतलब फिक्स, कोई बदल नहीं है। जैसे अल्लाह सुब्हाना का ताला का नाम किसी से बना नहीं और उससे कुछ बना नहीं, फिक्स। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बाजू में आ रहा है उसको क्या कहेंगे? रफा हालत में है, इस्मो लैसा। ये क्या है भाई? खबर है, तो ये बन गया खबरो लैसा जो मंसूब है। ये हो गए खवाइद इसमें के। तो आप इस तरह से बेहतरीन सा इसकी फोटो ले लो और अपने जबान में इसके नोट्स बना लो, ताकि हमेशा के लिए आपके काम में आए। ये 4 पॉइंट है अहम। पहला पॉइंट क्या है? लैसा का इस्तेमाल किया जा सकता है जुमले इस्मिया के शुरू में। दूसरा, लैसा हमेशा मुताबिकत में होता है जिन्स के एतबार से। अब दूसरी बात क्या है? लैसा सिर्फ राजी होता है, लेकिन जब उन्हें मुब्तदा के बाद आए तो काय में राजी होता है? उन्हें अदद में। और लैसा लगाने से क्या तब्दीली आती है? यहाँ लिखा है प्रेडिकेट, यानी कि आपकी खबर जो है रफा से नसब में जाती है। और उसके बारे में ये आपको नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये खाली नोट्स बनाना चाहते, जो लोग सीखना चाहते, सिखाना चाहते, अंग्रेजी का उर्दू में बना लीजिए और आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं धीरे से। अगर आपके कोई सवाल है तो बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लैसा की बहनें, और लैसा की बहनों में सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? काना। पहला कौन है? काना। उसके बाद क्या होता है? सारा, गल्ला, बाता, अस्बा। ये तीनों को याद रखने का आसान तरीका बताता हूं। ये तीनों को ये तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। सारा एक ही बार कुरान में है, एक ही बार है। ये आता है, ये आता है, ये आता है। ठीक है, बोलो ये दिन के टाइम पे इस्तेमाल होते हैं, ये रात के लिए है, ये सुबह के लिए। इतना ही से दिन, रात, सवेरे। रात, दिन में क्या हुआ, रात को क्या हुआ, सवेरे के, बस इतना याद रखो। ठीक है, खैर इसके एक एग्जांपल भी आपको बाद में मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। तो इसके अंदर एक और आता है माज़ाला। माज़ाला का मतलब है अब तक भी कोई तब्दीली नहीं है। मतलब कोई बीमार है और बीमारी अभी भी चालू है उसकी, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? अब तक भी वही हालत बरकरार है ना। तब्दील, माँ का मतलब नहीं, दाला बोल तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, खैर इसको भी बाद में देखते हैं, बहुत कम आए हुए हैं। अब फिर से आपके पास में कुछ बातें आ रही है जो आपको लिखना बनाना चाहे तो बना लीजिए। हाँ चलिए, यहाँ आ जाइए। ये लैसा मैंने जैसा कहा, ये फिएल है, नाफिस है, जामिद। अब लैसा चलता है काना की चाल, बहन है काना की। तो ये आ गया, देखो लैसा एक गायब मुज़क्कर है, लैसा नहीं है, ये क्या होगा? लैसता दो गायब मुज़क्कर नहीं है।
तो खाली इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तमाम के लिए क्या बोलना पड़ेगा, बाकी कुछ करना नहीं है आपको, इतना ही बोलना है, नहीं है आपका काम बनने वाला है। बोलो, एक गायब मुज़क्कर नहीं है लैसा, दो गायब मुज़क्कर नहीं है लैसा, तमाम गायब मुज़क्कर नहीं है लैसू, एक गायब मुअन्नस नहीं है लैसत, दो गायब मुअन्नस से नहीं है लैसता, तमाम गायब मुअन्नस से नहीं है लसना, तू नहीं है लस्ता, तुम दो मर्द नहीं है लस्तुमा, तुम तमाम मर्द नहीं है लस्तुम, तू एक औरत नहीं है लस्ती, तुम दो मर्द नहीं है, दो औरतें नहीं लस्तुमा, तुम सारे औरतें नहीं है लस्तुन्ना, मैं नहीं हूँ लस्तु, हम नहीं है लसना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो काना का जैसा देखे थे अपने, काना में तीन हुए थे, काना यकोनो को, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लसना में लस बस कुछ भी, लैसा में कोई चीज नहीं है, लैसा खाली अकेला लैसा है, आसान है, लेने का निवाला वाला खा लेने का। तो चलिए अब जरा इसके अच्छे बड़े एग्जांपल्स में जाके देखते हैं और इसको सीख लेते हैं। जरा पढ़िए भाई, जरा सेगा कौन सा है देखिए, कोई पहचान सकते हैं सेगा कौन सा है? जो लाल पहले लिखा हुआ है कौन सा सेगा है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, जमा है? मोनस है, मोनस मोनस का सीगा है सर, वाहिद मोनस हाजिर का सीगा है। हाजिर का सीगा है। कैसा कैसा पहचाने जी? ताकि नीचे जेर से साफ जेर है। तो ओरिजिनल क्या था? हंती। लैसत हाँ, नहीं से शाबाश शाबाश, क्या बात है, कुछ गोली भी लिखा है क्या सब लोग? एकदम स्मार्ट दिख रहे। हाँ? दिमाग से गोली खाई दिखा। चलो ठीक, तो ये लैसत था, क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्या है, अपने को अल आता है, पढ़ना नहीं आता, तो यहाँ से अपने को जाने के लिए लैसत फिट हो जाएगा। तो बतू, फिर इसके बाद में लिल्लज़ीना यामलूना सय्यात, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे लैसा कहाँ पे काम करा? यहाँ पे इस्मु लैसा क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जुमला इस्मिया है कि फेलिया है? देखो आराम से देखो, इसमें ये जुमला इसमें फेलिया है। जुमला फेलिया है, जुमला फेलिया है, जुमला हाँ, सर तामरबूता है आखिरी में। वो बन गया जुमला फेलिया अलसे लैसा जो है, शामिल है। लेकिन ओरिजिनली जो है लैसा दाखिल सिर्फ जुमला इस्मिया में होता है। ठीक है, तो जुमला इस्मिया में लैसा फेल की शक्ल में दाखिल हुआ तो हम कह सकते हैं जुमला फेलिया है, लेकिन ये जुमला इस्मिया में दाखिल हुआ। अब दाखिल हुआ तो लैसा का इस्म कौन है? इस्म लैसा कौन है? हाँ बताओ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं आई। अब यहाँ पे ली आ रहा है, लाम जेर ली, अल्लज़ीना का क्या बन गया? लिल्लज़ीना। ये कौन है भाई? लिल्लज़ीना कौन है? इसमें मौसूला है, हर पे जार है लगे हर्फ पे जर लगा, मुताल्लिक़ है, खबर है, खबर। मुताल्लिक़ है, खबर है, और आगे अमलूना वगैरह पूरा मिलकर ये एक कंप्लीट ना कंपाउंड हो गया है। लिल्लज़ीना यालमूना यामलूना यामलूना सय्यात, तो यहाँ से यहाँ तक का मुकम्मल बिल के खबर हो रही है, और यहाँ पर आ रहा है हमारा इसमें मौसूला, और सिला आ रहा है, उसका सिला आ रहा है जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया में हमारे पास आ रहा है फेल जो मुजारे में है, या दिख रहा है या मुतकल्लिम दिख रहा है, और उसके बाद ऊना दिख रहा है। तो कौन सा सेगा है भाई? ये गायब जमा मुज़क्कर का।
ये वाहिद जमा मुजक्कर कह रहा था, वाहिद भी है, गायब जमा गायब भी है। सर, गायब वाहिद नहीं, गायब जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर गायब। सही बात। ठीक है बेटे, बहुत सही कहा आपने। तो ये जो जब हम इसमें मौसूला सीखने वाले, बस अब बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर इसमें मौसूला शुरू होगा, तो इसकी डीप तालीम जब आपको मैं बता सकता। फिलहाल इसको इतना ही समझो कि ये खबरों लैसा लिल्लज़ीना से शुरू होकर सय्यिआत तक जा रहा है। इसके मायने होंगे और तो तौबा नहीं इन लोगों के लिए, तौबा नहीं है इन लोगों के लिए जो गुनाह करते हैं। ठीक है, जी सर। तो जरा यहाँ पे अब और भी जरा नोट्स बनाने के लिहाज से देख लीजिए। पहले मैंने जरा डिफिकल्ट वाला लाया, अब आसान आपके नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ लिखा मैंने लैसा, और यहाँ पे बी और इस्म। लैसा में डबल ताकत झोंकना है, मोस्ट पावरफुल बनाना है, तो बिल्कुल वगैरह मायने होते हैं। लैसा के बाद इस्म जो आएगा, खबर जो आएगी, उसको बी लगाएंगे, तो लैसा प्लस बी इस्म, ऐसा पूरा जुमला बनेगा। लैसा के साथ बा हर्फ जर इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एग्जाम्पल दिया करता हूं कि आपने रमजान मुबारक के रोजे रखे, उसके बाद शीर खुरमा बनाए, राइट? अच्छे से अच्छा शीर खुरमा बनाते हैं हम लोग, नमाज के बाद में आके पीते हैं, बहुत अच्छा मजेदार जायकेदार होता है। लेकिन घर का दामाद आ रहा है उस दिन मिलने के, बोलो दामाद आ रहा है, तो वही शीर खुरमा पिलाते क्या? उससे भी जरा ऊंचा, उससे अच्छा, क्यों भाई? जायका बदल लो और मीठा बेहतरीन नजर आए। लेकिन शीरखुरमा जाके खीर तो नहीं बनती ना, वो है शीरखुरमा ही रहता ना, लेकिन ताकतवर, मुखव्वी, स्ट्रॉन्ग, बहुत लजीज। तो वही यहाँ पे लैसा में बी लगाने से कोई भी अपने मायने पैदा नहीं करता, यानी कि मायने जाहिर ही नहीं होते। आप बोलना बिल्कुल नहीं है, राइट? लफ्जी एतबार से कुछ तब्दीली नहीं आएगी, मायनों के एतबार से तब्दीली नहीं आएगी। ये हमारे फीलिंग के हिसाब से, हमारे जज्बात के हिसाब से, जैसा यहाँ पे लिखा हो मैं लैसत ज़ैनबो, ये भी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? तभी बन। ज़ैनब नहीं है एक डॉक्टरनी। अब अगर ये भी लगा देंगे तो जोरदार शेरखुरमा बन गया। अरे ज़ैनब क्या लगाएगी, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर। ऐसे जज्बात पैदा हो, और नहीं छे चुपित बोल रहे तुम, ऐसा बैठी बात। तो बी बेजबर बी आ रहा, तो बी के साथ बिस्मिल्लाह में साथ होता, तो ऐसा कोई भी न्यूटन या आइंस्टाइन बनने की कोशिश मत करो, समझे कि नहीं? मैं एक नई थ्योरी निकाल, ग्रेविटी के रूल मैं लिखती बोलता नहीं। हाँ, ज़ैनबो लैसत भी, अभी बत्तिल इसलिए हो गया कि ये भी आ गया, समझ में आ गया आपको? हाँ, तो देखिए, क्योंकि देखो क्या है, इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्यों इस्तेमाल है? एंटर्स ओनली जुमला इसमें, ये जुमला इसमिया को नफी करता है, ये मेन काम। इसमें जमाना नहीं होता, इसकी ताकत को नहीं, जामिद है, ठीक है? अब उन्हें चल रहा, उसकी गर्दन माजी की हो रही, आवाज कर रहा है का, बड़ा अजीब है। तो ये नहीं है, क्योंकि अपना मेन जुमला में है। देखो यहाँ पे देखो, अगर हमारा मेन जुमला देखो, अगर खाली इसलिए अपने लैसत लैसा निकाल दो, ज़ैनबो तबीबतुन, ज़ैनब है ना, है ना, चलिए अपना लैसा लगाने से नहीं आता, दोनों मिलके नहीं है, तो लैसा का खुद का जमाना नहीं है, लैसा विदाउट एनी टेंस है, इट इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उसको टाइम से बंदिश नहीं है, उस पर
टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, राइट। तो लैसा को आप बाकी कुछ नहीं कह सकते, खाली नहीं कह सकते। और लैसा दाखिल होता जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया बाय डिफॉल्ट है रहता, उसमें बाय डिफॉल्ट पर रहता है, तो लैसा उसको जुड़कर नहीं है बनता, इतना ही। तो लैसा की कैफियत पूरी समझ में आई आपको। लैसा को टेंस हीन है, टेंस के साथ में उन्हें नहीं है, काळाचा काही घेणं देणं नाही। लैसा इस्तेमाल करते जुमला इस्मिया, ठीक है। अब अगर कोई जुमले में आपको जरा जबरदस्त शर्तमा बनाने का है, लेकिन पहले ही वहां मिल बैठा है, क्या मिल, क्या है बोलो, तो आप बी लगाएंगे क्या, मिन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ये क्या है, मिनल कुवैत, मोहम्मद साहब कहाँ के हैं, कुवैत के हैं, तो अब ये मिल को हटा के मैं बी लगाऊंगा नहीं होता, तो फिर बोलो लैसा लगाएंगे तो मोहम्मद नहीं है कुवैत से, खत्म। अब ये मिल के साथ कुश्ती लड़ने का नहीं है, मिल दिखा बी नहीं लगाना, ठीक है, समझ में आई बात। मिल पहले से है तो बी नहीं लगाए, तो ये बी को क्या बोलते, बी जायदा, क्या बोलते, जायदा। एडिशनल बी, जायदा बढ़ाने के लिए, जायदा माने एडिशनल। बात समझ आ गई सबको, और सब। जी। तो ये लैसा की पूरी कहानी है, इसमें लिखी हुई, आपको सब पढ़ा दिया मैंने। ये देखना है अहम बात, जरा पढ़ के सुनाइए भाई बहन। अब जरा यहाँ पे आप गौर फरमाइए, लैसा की पोजीशन कहाँ पे, लोकेशन कहाँ है लैसा का, ये लोकेशन यहाँ है लैसा का, यानी मुब्तदा से पहले है। यहाँ पे देखिए लैसा का पोजीशन क्या है, मुब्तदा के बाद में। ठीक है भैया, जरा छोटा करता हूँ तो क्लेरिफिकेशन जरा क्लियर होता है। अपने को भी करेंगे समझ रहे हैं हाँ? उन्हें कब करना जी? हाँ पढ़िए। अरे यार ये कौन सताने वाले हैं, जरा इधर खामोश हो जा मेरी बात, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जा। हाँ पढ़िए, लैसा लैसत तुल्लाब, तुल्लाब को नहीं वाहिद की जमा है, अनेक बच्चे हैं ना, तालिब इल्म एक है तुल्लाब, तो लैसा में तब्दीली है क्या, नहीं, खाली जेंडर के मुताबिक लैसा बदलता जब शुरू में आता, तो अपन पहले इतने को देख लेंगे। अब लैसा क्या है, रिजाल, दो के लिए भी लैसा ही जा रहा, हाँ बहुत आसान है ये तो। फिर यहाँ पे देखो औरत आ रही, क्या रे, बना तो, लैसतिल बना तो। अब लैसत क्यों आया भाई, औरत आई तो ही बदलाव है, नहीं तो नहीं बदलता। तो आप अगर आसान बना के लिखना है तो ऐसा चलो, लैसा लैसा लैसत लैसत लैसत, औरत है तो लैसत डालो, एक रहो तस्निया रहो जमा रहो। मैं पहले बता रहा रूल में, शुरू में डालेंगे तो आप खाली जिन्स की मुताबिकत करना, लेकिन ऐसा लिखेंगे आप। अब देखो अत्तुल्लाबु, तुल्लाबु बोलो तो पड़े भाई, जमा मुजक्कर है, एक से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा लैसु, एक लैसा, दो लैसा, जमा लैसु, तो फिर आप बोलेंगे तमाम स्टूडेंट्स नहीं है फिल फसली, क्लास में, है समझ में। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद डालेंगे तो फिर उन्हें अपने फाइल को देखेगा, उसके मुआफिक अपनी शक्ल बदल लेगा। यहाँ देखो और रिजालु क्या गया, और रिजालु, तो रिजालु क्या है भाई, एक है कि जमा है, जमा है। रिजालु नहीं जमा, जमा है, अच्छा चलो। और रिजालु के लिए क्या आ गया, वाव अलिफ आ गया, क्यों आया भाई, जमा लैसा का मोटा होगा तो लैसु हो जाता है, जमा हो जाता। जमा अब यहाँ जाओ, बनातु, बनातु, औरतों का जमा है, तो क्या आ गया, लसना आ गया, है क्यों आया भाई, लैसा लैसा लैसु, लैसत लैसता लसना। तो अकॉर्डिंग टू गर्दन चलेगा इधर में, और इधर क्या है, कुछ भी नहीं, खाली मेल फीमेल पहचान लो। अब यहाँ आ जाओ, अब ये क्या है, बुयूत, बुयूत का मतलब जमा है,
लेकिन वाहिद, बोलो क्या है ये? हाँ, बुयूत क्या है? जमा मुकस्सर है ना, गैर आखिल है ना, तो गैर आखिल का अपना रूल क्या है? वाहिद मोनस बनाते हैं। तो ये आगे ले सकते, आगे ले सकते। मोनस का सीख रहे हैं। हाँ, मोनस वाहिद मोनस है, आगे गैर आखिल। अब यहाँ देखो, अल मुस्लिमातु, अरे मुसलमान औरतें जमा है, तो फिर उसके लिए लसना आएगा, इजी हो गया। अच्छा, इसको ढंग से नहीं समझाएगा, जाते ही तो ये लिख लो बेटे, ये लिख लो, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, या फोटो ले लो। और ये बाकी का कुछ मुश्किल नहीं है, बताऊंगा मैं, आज नहीं बताऊंगा, कल को। बी लगाए तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट, बाकी कुछ नहीं है, सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे इनकार की चीजें आ गए। अभी तक जो जो इनकार सीखे, पहला इनकार देखिए भला क्या है? लैसा तालिबन, सादा इनकार है, लेकिन क्या है? डिजाइनर है। लैसा तालिबन मतलब क्या है? वो नहीं है एक तालिब इल्म। लैसा का इसमें छुपा हुआ है, हुआ छुपा हुआ है ना, लैसा बोले तो हुआ लैसा, बोलो ही इज नॉट ए स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना ही। सेकंड में आ जाओ, लैसा ताकत से पैदा करो, डेफिनेटली नॉट बनो। बी तालिब इल्म, he is definitely not a student। दो आ गए। अच्छा, इसके पहले हम माँ सीख चुके हैं। माँ बिल्कुल लैसा के जैसा ही चलती है। माँ दरअसल माजी का है, लेकिन माँ को यहां ला लिए, माँ हुआ तालिबन, माँ हुआ तालिब। ये दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ही इज मोस्ट डेफिनेटली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत बिल्कुल नहीं है उन्हें। हाँ बोलो, ये उन्हें नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं है, अरे बिल्कुल ही नहीं है जी उन्हें। हाँ, अब आ जाओ, फिर ये क्या है यहाँ पे? हुआ न, माँ हुआ बी तालिब इल्म, ही इज लाइक टोटली, इसका मतलब है जर्रा भी नहीं है यार, क्या लगा? तो ये पूरे के पूरे नसब मारने वाले लोग हैं। देखो, हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? उन्हें तालिब इल्म है, ये पूरे नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये माँ मुशाबे लैसा, माँ मुशाबे लैसा बोले तो खबर उसने नसब मारता। आ गया समझ में सबको? अब ये जमा करके रख लो तो आपकी बीमारी जाती नेगेटिव बनाने की। इनको तमाम को संभाल के रखो, इसलिए मैंने अलग से एक अच्छा आपके लिए बना के दिया। ये मरियम के नोट्स। ठीक है भाई, हो गया, सबको समझ में आया? तो कल एक और एक क्लास लेंगे इसकी इंशाअल्लाह, और एक बार फिर से पूरा शुरू करेंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ ले लेंगे, और लैसा को विदा कर देंगे। खुदा हाफिज़, लैसा जाके तू जा। परसों से हो सकता है इंशाअल्लाह इसमें मौसूला फिर से एक बम्पर टॉपिक है जो बहुत आता है, और उसमें समझने के कुछ चीजें हैं, उसको भी बड़े प्यार से समझ के समझदारी से लेंगे तो 3 दिन में वो हो जाता। तो ये हफ्ते में हमारे बड़े टॉपिक खलास। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से शुरू करेंगे हम मजीद फी ही। अल्लाह से दुआ करो। चलो, शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी, आयतों वाले इससे पहली लास्ट क्लास के अंदर हमने जो फेल लिख के निकाले थे, तो वो कौन से अफआल है बोलिए। अच्छा लिखे हुए हैं या नहीं है? नहीं लिखा हुआ है जी बोलिए। थक गए होंगे सर। अलमा यालमु, अलम हाँ, ला तालम। आलिमा, इसका मसदर सिखाना अल अल सिखा इल्मन होगा सर। आले आया इल्मन। इल्मन यानी कि जानना। जान जान उसके बाद असाबा असाबा बोलिए। असाबन सब मुसीब मुसाब साहिबन इसाबन इसाबतन हिसाबत। और मस्ती में आ रही थोड़ी खुजते आ रही ऐसे मस्ती आ रही तरह क्या? इधर की बूटी खा रही इतना छोड़ उधर की बूटी खा रही इतना करो छोड़ बच्चे कैसे रहते इश्तरा, इश्तरा इसका मसदर इश्तराउन उसके लकिया बाद लकिया लqiया यल्qी यल्qी ला तल्qa। इसका मसदर लिकान लिखान लाकिन इसके बाद हाजिदा नहीं जा क्या है जहद जा जा मुलाकियुन हाँ, है सर लिकान मुलाकिन क्यों नहीं, वो इस्मुल फाइल बन जाता मीम पेश मुआ। जी जी इतने ही थे इतना ही था सर। फेल इतना ही इतना था ही जी इतने ही थे लिखान बस है सर वो इतना ही लिखान था सर। हाँ, चार ही फेल। इल्मन का मायने है जानना, इसाबन के मायने है पहुंचना, इश्तिरा के मायने है खरीदना, खरीदो फरोख्त करना, और लिकान के मायने है मिलना। मिलना और ये जो लिकान है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, खलो, ये लिका के मायने है मिलना। हम किसी से मुलाकात कर रहे, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, तो इसे आप बोल सकते हैं अना मसरूरुन बिल लिकाई का, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। तो ये थे वो फेल और उनके मसदर। इसाबन मीनिंग क्या? पहुंचना। पहुंचना इसाबन हाँ, मीनिंग पहुंचना पहुंचना जी, मीनिंग ही थे ना वो। चलिए आज हम ये आयतें पढ़ेंगे, ये स्लाइड में की।
आयतें नजर आ रही सबको? जी सर। जी सर। इसमें पहला नंबर वाली आयत है फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। तो एक एक से सब पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा बताएंगे। तो शुरू कीजिए। लहुम फलहुम अज्रुहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, हाँ, बस उनके लिए उनके रब के पास अज्र है। उनके लिए, बस उनके लिए अज्रुहुम, हाँ उनका अज्र उनके रब के पास है। हाँ, है उनके रब के पास। तो आपने शुरुआत में बोले पस, उसके मायने क्या है और वो कहाँ से किस किस हर्फ के मायने हैं या किस लफ्ज फा के मायने हैं? वो फा हर्फ है, उसका फा, माना है फा के मायने तो इंग्लिश में तो बोलेंगे सो, या फिर आप उर्दू में बोलेंगे, फसी उर्दू में तो तो बस। तो आसान ये है कि आप बोलेंगे तो फलहुम, तो उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। तो जुमला इस्मिया बना देंगे इसको, उनके लिए उन सब का अजर है उनके रब के पास, पास। इंदा रब्बिहिम। बीच में है। चलिए, अच्छा ये इंदा रब्बिहिम जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता सकते क्या आप? ये इंदा क्या है, रब्बिहिम क्या है? इंद मुजाफ, हाँ, रब मुजाफ, फिर मुजाफ ले, मुजाफ मुजाफ का फिर उसका मुजाफ, मुजाफ ले, फिर मुजाफ बन के खबर होगा। जी। तो ये इंदा जो है, सबसे पहले ये बोलना है कि ये इंदा है एक ज़र्फ, ज़र्फ मकान, और ये मुरक्कब इजाफी, इसके बाद आने वाला इस्म जो रहता वो हालत जर में होता, और दोनों के मुरक्कब को बोलेंगे मुरक्कब इजाफी। इसमें ज़र्फ मुजाफ हो जाता और उसके बाद आने वाला इसमें मजरूर मुजाफ इलैहि हो जाता। तो इंदा रब्बी, इंदा मुजाफ और रब्बी मुजाफ इलैहि। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे रब, उसके ऊपर ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, ये भी एक इस्म है। और उसके बाद में जो आया हुम, वो है जमीर मुत्तसिल जो इस्म के साथ लग के आई। तो ये दोनों भी हो गए मुजाफ और मुजाफ इलैहि। तो दोनों भी इंदा रब्बी मुरक्कब इजाफी, रब्बिहिम फिर डबल मुरक्कब इजाफी। चलिए, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। तो पूरी आयत के हिस्से के मायने हो जाएंगे फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उन सब के लिए उन सब का अजर है उनके रब के पास। ये याद रखना है। अच्छा, ये हम छोटी छोटी आयतें इसकी प्रैक्टिस कर रहे। ये जब मायने आपके सामने जो बोले जा रहे या जो भी बोलेंगे, आप उसको या तो लिख लीजिए या फिर इसको जहन में रखिए, वर्ड टू वर्ड। हमको हर एक लफ्ज के मायने आपको जहन में रखना है, और ये छोटी छोटी आयतें आप इसको याद करते हुए भी चलिए, ताकि आपको ये आयत भी याद हो जाए, इसके मायने भी समझ में आ जाए। और कुरान में बहुत जगह इसी किस्म की आयतें इस्तेमाल हुई, तो आपको उसका तर्जुमा भी जहन में रहेगा, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो आयत भी याद रहेंगी इंशाल्लाह। चलिए, अभी 2 नंबर वाली आयत पढ़ेंगे। अब जो पढ़ लिए वो अपना माइक बंद करेंगे, आखिरी तक आपका माइक चालू नहीं होना। चलिए, नेक्स्ट कोई और पढ़िए। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के पास इस्लाम मजहब दीन है। बेशक दीन, इन्न दीना, बेशक दीन, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, अल इस्लाम है इस्लाम। है इस्लाम। ये जब भी तर्जुमा हम कर रहे हैं तो वहां पे आप देखिए कि है कहाँ पे डालना है, अच्छा या आप अच्छा। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आखिरी में डाल दो। जी जी। लेकिन जरूरी ये है कि जहां पे है जरूरी है वहीं डालना, तो हमको समझ में आता ग्रामर उसका कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। तो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लामु। अब यहाँ पे इन्ना जो है वो एक हर्फ है, और हर्फ का नाम है हर्फ तौकीद व नस्ब। और ये जो इन्ना आ रहा वो हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से आ रहा। इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना व अखवातुहा, इन्ना की पूरी बहनें हैं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना,
लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला। अल्लाह। इनके बाद ये हमेशा जुमला इस्मिया पे आते और मुब्तदा को नसब देते। तो यहाँ पे जो नसब हुआ इन्ना अद्दीना, दीन के ऊपर नसब हुआ तो वो हो गया इन्ना का इस्म। इंदल्लाही फिर से मुरक्कब इजाफी, इंदा ज़र्फ है और अल्लाही इसमें मजरूर है, तो ये दोनों मिलके हो गए मुरक्कब इजाफी, मुजाफ और मुजाफ इलैहि। अल इस्लामु मारिफा के साथ है तो सिर्फ के मायने आएंगे यहाँ पे। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम। चलिए जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उसके बाद 3 नंबर आयत कौन पढ़ने वाले हैं? सर मैं पढ़ती हूँ। इल्मुहा इंदा रब्बी, उसका जी इल्म है मेरे रब के पास। बहुत अच्छे, अलग अलग करके बताइए। इल्मुहा हा जमीर है सर, इल्म इसमें लग के आया, और इंदा पास है, और मैं रब्बी मेरे रब के पास। हाँ रब्बी, उसके साथ मेरा रब क्यों बोले आपने? क्योंकि या ई आया मुतकल्लिम, लास्ट में, ई आया रब्बी। हाँ या जमीर लगी हुई है, इस वजह से हो हाँ, गया और मेरा रब। दोनों के बीच में है सर। हाँ इल्मुहा के बाद आएगा है और फिर हाँ आएगा रब्बी। जी सर। इल्मुहा यानी कि उसका इल्म, अब वो कोई भी मोनस चीज हो सकती, उसका इल्म इंद रब्बी है मेरे रब के पास। पास। बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाहु खैरन। चलिए 4 नंबर वाली सेम इल्म आयत है, आप इस पढ़ दीजिए। इल्मुहा इंदिल्लाही, हाँ अल्लाह के पास इल्म है। किसका इल्म है? अल्लाह के पास हाँ किसका इल्म है? किस चीज का इल्म है? पता नहीं इल्म, हाँ उसका इल्म उसका इल्म। इंदल्लाही है अल्लाह के पास। जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे पढ़े थे ना, उसका हाँ, इल्म है उसका मेरे रब के पास, उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे उसका इल्म है अल्लाह के पास। अच्छा इल्मुहा इंदल्लाही। इंदल्लाह। ये बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 नंबर वाली आयत, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, उन सबका बदला उनके रब के पास है। हाँ फिर से पढ़िए, फिर से। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, उन सबका बदला है उनके रब के पास। उनके रब के पास, बहुत अच्छे। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, फिर से जज़ाउहुम मुरक्कब इजाफी, इंद रब्बी मुरक्कब इजाफी, रब्बिहिम फिर से मुरक्कब इजाफी, तो 3 मुरक्कब इजाफी है यहाँ पे। जज़ाउहुम उन सब की जजा या उन सब का बदला, इंद रब्बिहिम है उनके रब के पास। बहुत अच्छे। चलिए 6 नंबर वाली आयत, इल्मुहा भी मुजाफ मुजाफ इलैहि का इल्मुहा, जी इल्मुहा भी मुजाफ मुजाफ इलैहि है। हाँ इल्मुहा भी मुजाफ इलैहि मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि इल्मुन होना चाहिए। हमने अभी मस्दर निकाले आलिमा का इल्मन, तो उसका इल्मुन भी हो सकता, इल्मिन भी हो सकता। तो इल्मु हुआ बगैर तनवीन और बगैर अलिफ लाम के, और उसके बाद जमीर लगी हुई है। चलिए 6 नंबर वाली आयत पढ़िए, इंदहुमुत तौरातु फीहा हुक्मुल्लाहि। सर ये इल्मुहा इंदल्लाह, ये दोनों इसमें भी डबल मुरक्कब इजाफी हुआ ना? हाँ डबल मुरक्कब इजाफी जी। चलिए रुकिए, पढ़ने दीजिए उनको, जो लोग पढ़ रहे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, अगर कोई रुके हुए है तो फिर तब बोलना। चलिए पढ़िए। इंदाहुमुत तौराता, तौरातु, इंदा ज़र्फ है जो कि हर्फ जर की तरह ही काम करता है, और उसके बाद वाला जो इसमें वो मजरूर होता है। यहाँ पे हम मबनी है। इंदाहुमुत तौरातु, उनके पास है तौरात। फीहा, फीहा ये मुरक्कब जारी है। उनके पास है तौरात, फीहा उसमें है हुक्मुल्लाही, ये हुक्मुल्लाही मुरक्कब इजाफी है। हाँ, उनके पास है तौरात, उसमें है अल्लाह का हुक्म। बहुत अच्छे। यहाँ पे मायने के एतबार से दो जुमले निकल रहे।
इंदहुमुत तौरातु, इंदहुम फिर से मुजाफ और मुजाफ इलैहि है, यानी कि इंदा ज़र्फ है और हुम ज़मीर है, तो ये दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी हो गया। इंदहुम यानी कि उन सब के पास, अत-तौरातु है तौरात, फीहा हरफ जर के साथ इसमें मजरूर यानी कि ज़मीर लगी हुई है, फीहा उसमें है, हुक्मुल्लाही अल्लाह का हुक्म, उन सब के पास है तौरात, उसमें है अल्लाह का हुक्म। बहुत अच्छे। चलिए 7 नंबर वाली आयत, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम। लहुम, ला हर्फ जर है, हुम जमीर है, लहुम उनके लिए, अजरहुम उनका अजर, इंदा, इंदा ज़र्फ है, रब्बिहिम रब की उनके रब की तरफ, वला, पास, जी सर, उनके रब के पास, उनके रब के पास, वला और ना, खौफुन खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उन पर, और ना कोई खौफ, हाँ अलैहिम पर। उन पर। चलिए फिर से पूरी आयत का हिस्सा जो है वो पूरा पढ़िए और फिर तर्जुमा बताइए अच्छे से। लहुम उनके लिए, अजरहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन और नहीं कोई खौफ है, अलैहिम उन पर। हाँ उर्दू में बोलिए पूरा। अच्छा पूरा एक आप उसका मफहूम बताइए। अभी आपने लफ्जी तर्जुमा बताए थे, अभी आपका इसका जो मफहूम है यानी कि एक खुलासा जो निकलता, मायने का एक इबारत निकलती, वो बता दीजिए कि इसके इस आयत से, इसके हिस्से से हमको क्या नसीहत हासिल हुई, बस वो बता दीजिए। उनके लिए उनका अजर है अपने रब की तरफ से, और नहीं खौफ है अलैहिम उन नहीं, पर। यहाँ ये देखिए, तरफ से जो आप बोल रहे ना, तरफ से नहीं, इंदा के मायने है पास। उनके हाँ अपने रब के पास, पास से। हाँ उन सब के लिए उनका अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और नहीं है खौफ उन सब पर। ठीक है, चलिए 8 नंबर आयत नेक्स्ट पढ़ेंगे, लहू अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम। सर अजरुहुम मुरक्कब इजाफी होगा ना? जी मुरक्कब इजाफी है। और इंदा पहचान ये है कि जब भी इजाफी हाँ भी मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ मुजाफ मुजाफ इलैह। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर वाली आयत, लहू अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम। उसके लिए अजरहुम। सर वापस से पढ़ दे क्या? वापस पढ़ दे। और कोई नहीं है क्या पढ़ने वाले? सर लहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम। जी उनका अजर है उनके लिए। नहीं नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, देखिए लफ्ज हर्फ कौन सा है देखना है आप। लहू, हाँ उसके लिए, लहू उनके लिए ना, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए हाँ उसका अजर है रब के पास। किसके रब के पास? उसके रब के पास हाँ उसका अजर है उसके रब के पास, और नहीं खौफ है उन पर। हाँ और नहीं है खौफ उन सब पर। उन सब पर। ये दोनों भी सेम है, फर्क खाली यहाँ पे लहुम है और यहाँ पे लहू है। यहाँ पे जमा है, यहाँ पे वाहिद मुजक्कर है, और यहाँ पे भी रब्बिहिम जमा है, यहाँ पे वाहिद मुजक्कर है। चलिए बहुत क्यों अच्छा। आया आगे वाला खौफुन? तो आगे अलैहिम क्यों आया फिर? अलैहिम वो आयत में, और कोई आयत में होगा वो देखना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे वाहिद का सीगा है, आगे जमा का है, इसलिए पूछ रहे थे। जी जी
वला खौफुन अलैहिम आयत का एक हिस्सा लिया हुआ है, ये असल में कंप्लीट आयत नहीं है। चलिए 9 नंबर आयत पढ़ना है। इन्न सफा इन्न वल सफा मरवता मिन शाइरिल्लाह। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाही, बेशक बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हाँ, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह की निशानियों में से है। चलिए उसके बाद 11 नंबर वाला पढ़ना है। बैनना व बैनकुम, उनके दरमियान और हमारे दरमियान और उनके दरमियान, हाँ हमारे दरमियान और उनके और दरमियान। तुम्हारे ये दरमियान। बैना जो है, बैना भी एक ज़र्फ है, यानी कि दरमियान, बीच में। तुम्हारे दरमियान बैनना व बैनकुम, पर 10th वाला नहीं है। हमारे हमारे टेंथ दरमियान वाली दरमियान आयत और ये और दोनों तुम्हारे सेम है। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़े मकान, बैनना व बैनकुम तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। चलिए नंबर 12 पढ़ना है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हाँ बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अभी इसको आप इसका ग्रामर बताएंगे, मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? बताना के साथ नहीं नहीं, इन्ना हाँ चलिए बताइए, हम बता रहे मुब्तदा हाँ, बता रहे हैं। हैं। हाँ इन्ना का इस्म इन्ना अल्लाह है, हाँ, मा साबरीन खबर है। अल्लाह जो है इन्ना का सर, इस्म अल्लाह है, सब में है। हम्म, इन्ना बेशक अल्लाह, और मआ साबिरीन साथ है। मआ खबर, इन्ना की खबर। इन्ना की खबर, मआ हाँ इन्ना साबिरीन की खबर है, जो मुतालिक खबर कायम मुकाम खबर बन गई, यहाँ पे खबर मौजूद नहीं है। तो बहरहाल चलिए, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अब ये जो साबिरीन है, ये एक इस्म है, ये इस्म है, तो इसकी पहचान ये हुई कि ये शुरुआत में अलिफ लाम आ गया तो ये इस्म हो गया। अब ये इस्म है, तो इस्म की कौन सी कैटेगरी में आता है ये? इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, इसमें ज़र्फ, मारिफा इस्मुल फाइल या मारिफा है। मारिफा मारिफा है। अल्लाह बहुत अच्छे। अब देखना है, जी इसमें ज़र्फ है, अल्लाह के वहाँ इस्मुल मफूल है, इस्मुल फाइल है, क्या है? इसमें फाइल है, इसमें ज़र्फ़ फाइल है, इस्मुल फाइल है, फाइल है। करने वाले, साबिरीन सब्र करने वाले, करने वाले। करने वाले। हो गए सब्र जमा करने फाइल वाले, है। मअस साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक यकीनन अल्लाह है सब्र करने वालों के साथ। चलिए उसके बाद है साबिरीन नंबर सबर 14, करने वाले, 14 अल्लाह नंबर। का बेशक अल्लाह इन्नी आपको माअकुम सबर मिनल करने वाले हैं। मुंतज़िरीन, पढ़िए। बेशक मैं माकुम तुम्हारे साथ हूँ, मिनल मुंतजिरीन। मुंतजिरीन माने इंतजार करने वाला। इंतजार करने इंतजार करने करने वाले। वालों में से। हाँ, इंतजार करने वालों बेशक में से। मैं हूँ तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में। करने वालों में। इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन, बेशक मैं हूँ तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से। नंबर करने 15 वालों में पढ़िए। से। इन्ना अबाना लफी मुबीन, बेशक हमारे बाप वालिद, दादा, अबाना माने वालिद, हाँ हमारे वालिद, लफी जलाल, लफी में है, मतलब जरूर है, खुली गुमराही। जलाल मुबीन, खुली गुमराही में खुली है। गुमराही। हाँ चलिए इन्ना बहुत अच्छे। अबाना जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सर कोई पढ़ रहे थे, आप पढ़िए। कोई जेंट्स पढ़ रहे थे? इन अबाना लफी जलालिम मुबीन, बेशक हमारे बाप दादा नहीं, जरूर, हाँ दादा नहीं है अंदर। हमारे वालिद, लफी हाँ जरूर खुली गुमराही में है।
हाँ, ये दो यहाँ पे हरफ तौकीद जो हरफ ताकीद जो इस्तेमाल हुए, दो हर्फ इस्तेमाल हुए, एक इन्ना भी है और एक लाम भी है, यानी कि डबल बूस्टर है। अब ये बोलने वालों का एक स्टेटमेंट है कि हमारे वालिद, ये अबाना जो आया ये 5 इसम ऐसे है, मतलब उसमें से ये एक है अबुन, अबन और अबिन, ये इसका हालत के एतबार से तब्दील होती। अब यहाँ पे अबा, हमजा जबर आ, बा जबर बा, जब इन्हें मुजाफ बनता तो अलिफ के साथ आ जाता अबा, और फिर ना, यानी कि हमारे अब्बा, हमारे वालिद साहब, इन्ना अबाना, हमारे अब्बा, हमारे वालिद साहब, लफी ज़लाल मुबीन, यकीनन खुली गुमराही में है। ज़लालिम मुबीन, ये है ज़लालिम यानी कि गुमराही, और मुबीन यानी कि वाज़े, ये दोनों मिलके मुरक्कब तौसीफी हो गया। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे अब्बा यकीनन खुली गुमराही में है। इसके बाद है नंबर 16, इंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास गैब की चाबियां हाँ, उसके पास है गैब की चाबियां, गैब की चाबियां। मिफ्ताहुन वाहिद है, एक चाबी, और मफातिहुन जमा है, बहुत सारी चाबियां। और मफातिहुन, अल मफातिहु दोनों भी नहीं है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। उसके बाद अल गैबी हालत जर में है, मफातिहुल गैबी, गैब की चाबियां, इंदहु उसके पास है, मुरक्कब इजाफी। चलिए उसके बाद है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सब रुक जाइए। हाँ, इन्ना, ये जुमला इसमिया है सर, क्योंकि ये इन्ना से शुरू हो रहा है, तो इन्ना हरफे तौकीदिन और नस्बिन है, वो अपने मुब्तदा को हालत रफा से हालत तब्दील होकर हालत नसब में आ जाती है। तो ये इन्नल इंसाना, बेशक इंसान है। उसके बाद लफी है, लाम ताकीद है या फ्लोटिंग लाम। हाँ, ये लाम ताकीद करने वाला है, लेकिन इसका नाम कुछ अलग है, इसका नाम है लाम मुज़हलका। हाँ, वही फ्लोटिंग लाम बोली ना सर ने। हाँ, फ्लोटिंग लाम, बहुत अच्छे। हाँ, तो बढ़िया। लफी फी हरफ जर है, और खुसरिन ये इसमें मजरूर है, फी की वजह से ये मुरक्कबे जारी है। तो इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान है बहुत ज्यादा नुकसान में या खसारे में। खसारे में, बेशक इंसान है यकीनन खसारे में। और इसका मुब्तदा तो हो गया इन्ना का इस्म अल इंसाना, और इसकी खबर, इन्ना की खबर, इन्ना की खबर, ये मुरक्कबे जारी है, तो इसमें खबर नहीं है कैसे? इसमें हाँ, मतलब खबर इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो खबर महजूफ है, तो टेम्पोररी ये फी खुसरिन जो है उसकी इन्ना की खबर बन गई। हाँ जी, कायम मुकाम खबर। खबर जी, बहुत अच्छे। तो उसके बाद है नंबर 18, बैनना व बैन कौमिना, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान। बहुत अच्छे, हमारे दरमियान और बैन कौमिना, हमारी कौम के दरमियान। जी, अच्छा, ये पूरी आयतों के अंदर 18 आयतें, इनका एक आयतों का हिस्सा हमने पढ़े, इसके अंदर कोई फेल मिला क्या हमको? दलालिन फेल है, फेल नहीं है सर, नहीं है पक्का? जज़ाउहुम फेल है ना सर? जज़ाउहुम नहीं, जज़ाउहुम ये वो है मुरक्कब इजाफी है, तो इसमें आ गया, नाउन आ गया, पॉजिटिव फ्रेज। नहीं दिख रहा सर, जुमले इसमें आए पूरे तकरीबन। हाँ, पक्का नहीं है ना फेल इसमें? नहीं दिख रहा सर। अच्छा, चलिए, ये खौफुन फेल नहीं है ना? नहीं है सर, है ना? हाँ, इसमें तनवीन आ रहा ना, सोच रहे आप लोग, इसलिए जिसमें है वो
हाँ, ये देखिए अल्लज़ी, हुवल्लज़ी, वो हुवल्लज़ी, मौसूला अल्लाहुल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। कुरान में इस किस्म के अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए। आपको तकरीबन आयतों में मिलेंगे, तकरीबन सूरों की शुरुआत में मिलेंगे, और बहुत सारी जगहों पे ये अल्फाज इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इसमें जो पहला है नंबर 1 पे अल्लज़ी, ये हमको मालूम है, सबको पढ़ाने की, बोलने की जरूरत नहीं है कि ये है इसमें मौसूला। इसमें मौसूला का काम क्या है? जोड़ने का, जोड़ना जोड़ने का Connect काम। करने का। ये है शादीराम घर जोड़े, रिश्ता लगाने वाले, दो जुमलों को आपस में जोड़ते, और इनके बाद जो भी जुमला आता, चाहे वो जुमला फेलिया हो, चाहे वो जुमला इस्मिया हो, कोई भी जुमला हो, वो पिछले वाले की यानी कि सिफात बयान करने के लिए आता, क्वालिटीज बयान करने के लिए। अल्लज़ी के मायने क्या है? जो या जिसने। जिसने अब जो उसके साथ अगर उसके मुताबिक में एक जमीर लग गई, वही है प्रोनाउन जो, अगर आ गया उसके साथ में, हुवल्लज़ी, वही है जो, वही है जो, वही है जो वहुवल्लज़ी, और वह जो, और वो वही है जो या जिसने, अल्लाहुल्लज़ी, और वो अल्लाह जिसने जो अल्लाह जो अल्लाह है या जो अल्लाह। अल्लाह जो है। हाँ, सुब्हानल्लज़ी, पाक है पाक वो है जो, है वो जो, या पाक है वो जिसने। अगर जुमला इसमें आ रहा तो जो, अगर जुमला फेली आ रहा तो जिसने। जिसने उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ है अल्लाह की तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जो या जिसने। जिसने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, जो या जिसने। अब इसके बाद में जो जुमला आया तो वो तमाम के तमाम क्वालिटीज, तमाम के तमाम सिफात बयान होगी किसकी? अल्लाह के लिए। अल्लाह की। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये एक लास्ट स्लाइड आज कर लेंगे फास्ट। सबसे पहले है अल्लज़ी खलक़का। अब अल्लज़ी आया, इसमें मौसूला, उसके बाद क्या आया? जुमला फेलिया। फेल आया तो जिसने, अगर इसम आया तो जो, फेल आया तो जिसने। अल्लज़ी खलक़का, खलक़का वो जिसने पैदा किया ये जो खलक़, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, कहाँ आ गया? मफ़ऊल बन गया। जिसने पैदा किया तुझे, जिसने पैदा किया तुझको। तुझको 2 नंबर वाली आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी और मौत। हाँ, जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी जिंदगी को। बहुत अच्छे। उसके बाद 3 नंबर पे है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो मेरे रब के नाम के साथ जिसने तुझे पैदा किया। अल्लज़ी खलक़का, जिसने पैदा किया। ठीक है, इक़रा थोड़ी देर के लिए पढ़। अल्लाह के नाम से पढ़, बिस्मि रब्बिका, तेरे रब के नाम से, तेरे रब के नाम से पढ़। अल्लज़ी खलक़ा, जिसने पैदा किया। अब ये देखिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये है पढ़ने के बारे में हुक्म दिया जा रहा, और ये कुरान की सबसे पहली आयत है, सबसे पहली वही है, आप तमाम लोगों को मालूम है। जब बताया गया इक़रा यानी कि पढ़ो, तो एक जवाब आया, रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए, मा अना बिक़ारी। क्या जवाब आया? मैं पढ़ा लिखा नहीं। 2 मिनट सुनने दीजिए प्लीज। पढ़ना नहीं जानता। माइक म्यूट कीजिए, सब लोग अपना माइक बंद करिए। मा अना मा अना बिकारी, क्या मायने है इसके? मैं नहीं जानता। नहीं, मैं नहीं पढ़ना नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कारी यानी कि पढ़ने वाला, और जब जुमला इसमें में आता
تو میں پڑھا ہوا یا یعنی کہ میں پڑھا ہوا ہاں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں نہیں ہوں بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں. اب اس کو اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر دو جملے ہیں. ایک ہوتا یہ شروع میں آ رہا ما انا بقاری, اگر ہم دو حرف یہاں سے نکال دیے ما نکال دیے اور بازر بھی نکال دیے تو انا قاریون یعنی کہ میں ہوں پڑھا لکھا, میں ہوں پڑھنے والا, ٹھیک ہے میں ہوں پڑھا ہوا. انا قاری میں پڑھا ہوا ہوں. اس کو ہم کو بنانا ہے نیگیٹو. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ کو نفی بنانا ہے, منفی بنانا ہے. اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا؟ ماں استعمال ہو رہا ہے ایک, اور دوسرا لا بھی ہوتا لا, اور لیسا 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 بخاری لیسا ماں استعمال ہو رہا اور لیسا استعمال ہو رہا. اور لیسا کون ہے؟ کانا کی بہن ہے. جب کانا کی بہن ہے تو کانا کے جیسا ہی حرکتیں ہیں اس کی. کیا حرکتیں رہیں گی کانا کی؟ قاریان کرینا مبتدا کو چھیڑنا نہیں, خبر کو چھوڑنا نہیں. کانا اگر آ گیا یا پھر اس کی تمام کی تمام بہنیں آ گئے تو مبتدا پہ کچھ نہیں کرتے اور خبر پہ اٹیک کرتے. تو خبر کو لے کے جاتے انہوں حالتیں نصب میں نصب ہے. اور کانا کے معنی ہے وہ تھا اور لیسا کے معنی ہے نہیں ہے. اگر یہاں پہ لگا دیا ہم نے لیسا لیسا. اچھا انا آ گیا, لیسا آ گیا. لیسا کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے. اور جیسا کانا کی پوری 14 صیغوں کی گردان بنتی, کانا کا فعل ماضی بنتا, فعل مضارع بنتا, فعل امر بنتا, فعل ناہیہ بنتا. لیکن لیسا ایک ایسی بہن ہے اس کی جس کا صرف اور صرف فعل ماضی بنتا, اس کا امر ناہیہ اور مضارع کچھ بھی نہیں بنتا. اس کا صرف کیا بنے گا؟ ماضی. ماضی کے 14 صیغوں کی گردان بن جاتی. تو لیسا آج ہم نے دیکھے لیسا وہ نہیں ہے, لیسا وہ دونوں نہیں ہے, لیسو وہ سب نہیں ہے, لیست وہ عورت نہیں ہے, لیستا 2 عورتیں نہیں ہے, لسنا تمام عورتیں نہیں ہے, لستا تو نہیں ہے, لستما تم دونوں نہیں ہے, لستم تم سب نہیں ہے, لستی تو ایک عورت نہیں ہے, لستما تم دونوں نہیں ہے, لستنا تم سب عورتیں نہیں ہے, لستو میں نہیں ہوں, لسنا ہم سب نہیں ہیں. اب لیسا استعمال کرنا ہے کانا کی بہن یہاں پہ انا قاریون کی جملے میں. تو ابھی لیسا کا کون سا صیغہ یہاں پہ استعمال؟ لستو ہو جائے گا لستو. لستو قاریان. اب لستو ہے. اب لستو آ گیا, کانا کی بہن آ گئی, تو سب سے پہلے کہاں اٹیک ہوگا؟ کہاں خبر, کہاں پہ یہ لوگ عمل کریں گے؟ خبر پہ, خبر کے اوپر. یہ ہو گیا لستو انا قاری. اب لستو جب آ گیا تو ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ انا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انا اس کے اندر چلے جاتا. لستو قاریان. اور اگر اس کو زوردار نفی دینا ہے تو بازر بھی. لستو بقاری, میں قاری نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. سر وہ بخاری ان ہو جائے گا نا سر؟ ہاں سوری, لستو بقارین, ٹھیک ہے. اب یہ لستو ہے, لیسا ہے, تمام چیزیں ہیں, یہ صیغوں کے اعتبار سے بدل رہے. اور اس کے اندر لیسا کے جیسا ہی اور زیادہ تاکید پیدا کرنا ہے کہ میں بالکل بھی نہیں ہوں, تو اس کے لیے ایک حرف ہے ماں. صرف لستو کی جگہ پہ ماں لگا دینا ہے اور وہ جو ضمیر پہلے سے تھی اس کو واپس لانا ہے. ماں انا بقاری, میں بالکل پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ وہ آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا, اس کے بعد روایت میں آتا پھر وہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے ما انا بقاری, جس کے ذریعے سے لیسا اور مانا دونوں کی پریکٹس ہو جاتی. چلیے ایک اور 3 آیتیں پڑھ لیں گے خالی. 4 نمبر والی آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ.
जो अल्लज़ी इसमें मौसूला है, वो जो जिसने माल जमा किया हो, माल व जिसने जमा किया माल माल जमाया अदद और गिना माल जमाया और गिन के गिना रखा गिन का उसको गिन गिन और के गिन के रखा उसने माल जमाया और उसे गिन गिन के रखा उसके गिन के हाँ, रखा और गिना उसे। उसे हाँ अल्लज़ी इसमें मौसूला है, इसमें मौसूला के बाद अगर इसम आया या जुमला इसमिया आया तो जो, अगर फेलिया आया तो जिसने। तो अल्लज़ी जमा, जिसने जमा किया, फेल है क्या जमा किया? माल जमा किया। माल व अद्ददा, व और अद्ददा और से गिना गिन के से रखा ये गिनता भी है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अद्ददा, उसने गिना, उसने गिना, और उसने गिना, उसने काउंट किया, उसको उसको। उसको माल अल्लज़ी को जमा मालहु व अद्ददा, जिसने जमा किया माल और गिना उसको। उसको उसके बाद है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो जिसने वही है तुमको पैदा जिसने किया तुमको मिट्टी पैदा से किया मिट्टी से वही है जिसने पैदा किया तुमको मिट्टी से। हाँ, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो जिसने पैदा किया तुम सबको मिट्टी से। मिट्टी से। उसके बाद 6 नंबर है वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, वो वही है जिसने और वो जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे तुम्हारे लिए सितारे तारे सितारे और वो जिसने बनाया तुम सबके बनाया लिए सितारे। सितारे अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम, अल्लाह अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे जिसने लिए बनाया चार तुम पाई सबके लिए बनाया चार पाई मवेशी। पाए चौपाए हाँ, चार पाई नहीं, चार पाए। चार पाए मवेशी चार पाई बोले तो चार खटिया पाई। हो जाती पलंग। वो भी चार उससे पाए बने से चार पाए पाई बकरी मवेशी। चार पाई भी किसकी बनेगा मीनिंग आई मवेशी? अनाम, अनाम। अनाम की मीनिंग है अनाम। मवेशी, फालतू जानवर। जानवर चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे। और इसके अंदर से जो फेल है वो है खलका, जो हमने पहले लिख लिए थे। उसके बाद क्या है? करा, इकरा। करा यानी कि उसने पढ़ा, इसका पढ़ा। मसदर निकाल के लाना है। उसके बाद है जमा, जमा उसके बाद है अद्ददा, अद्ददा अद्दद और फिर बस हो गए। हो गए। जाला है ना जाला। जाला, चिड़िया जाला जाला हो गया ना, पहले कर लिए थे। हाँ अभी यहाँ पे है करा यकराउ, इकरा ला तकरा, करा का माजी मुजारे अम्र नाहिया। जमा यजमाउ इजमा ला तजमा। अद्ददा युअद्दिदु तादीदन, अद्ददा युअद्दिदु अद्दिद ला तुअद्दिद, उसका मसदर ढूंढ के लाना है। चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।